Hello guys, I hope you are doing good. Okay, so in this video I am going to explain the way to set the recursively a proper permission to your file and folder from cPanel. Okay. Mm, as you know, during the go live site on server, okay, you face many type of errors. It's can come due to server settings, it can come due to your STX file permission, or it can come due to your file folder permission. Okay, so if you are getting the server internal error, okay, so after upload the files on server file and folders from server, if you are getting the server internal, it means it's related to file and folder permission. Okay, so today I am going to explain how you can set the file and folder permission via cPanel. Okay, and so there are two way to set the permission of file folder. One way is set the permission manually. Okay, for example, this is my cPanel file directory access. Okay, and here you can see I have the WordPress file. Okay, and WordPress file folder permission is 664 and folder permission is 777. Okay, so due for security reason, this is very high risk 777 permission. Okay, so due to these permission, okay, high level permission, server not allowed to exit your website. That's why you get the सर्वर इंटरनल एरर. ओके, तो इसको हम दो तरीक़ा से फिक्स कर सकते हैं. वन वे इज बाया मैनुअल एंड सेकंड वे इज बाया टर्मिनल. ओके, सो मैनुअली यदि आप इसको करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा. फॉर एग्जांपल, आपको इस फाइल का परमिशन सेट करना है, इंडेक्स का चेंज करना है 644. ओके, let me change the permission. Okay, 644. Okay, so you can see permission has been changed. Okay, so you can select the all files and you can set all the files in a single time. 644 change permission. Okay, you can see permission has been changed. Okay, so this is the one way you can use it. ओके, बट इस केस में आपको क्या प्रॉब्लम आएगी मेनली, लाइक रूट पे तो हमने ये परमिशन दे दिया है. ओके, वी हैव गिवन द प्रॉपर परमिशन रूट, बट व्हेन यू विल गो टू गिव द follow the same process to give the manual permission for all files. Okay, so you can see there are lots of folder. Okay, so one by one if you will go to do manual set permission for files, then it will take your lots of time. Okay, तो इस केस में आपको टर्मिनल की ही हेल्प लेनी पड़ेगी. विदाउट टर्मिनल यू कांट सेट द परमिशन इजीली. ओके, तो like this one I can set the permission, change the permission in same way, like 755. Okay, you can see permission has been changed, but there are a lots of subfolder. Okay, and within subfolder you also see some मल्टी सब फोल्डर, मल्टी लेवल सब फोल्डर. ओके, तो इस केस में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको टर्मिनल का यूज करना पड़ेगा सब पे परमिशन सेट करने के लिए. ओके, तो बाय टर्मिनल यू कैन सेट द परमिशन ऑफ फाइल फोल्डर विद इन सेकेंड्स ओनली. ओके, सो let me show you how you can do it. Okay, so first of all I want to let you know that the file and folder permission should be, files permission should be 644. Okay, for security reason
it's always should be 644. Okay, 644. Okay, let me change it to 666. Oh no. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 64666 मैंने सेट कर दिया इसका। अभी एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी सेट कर दे सकता हूँ। ओके, तो आई विल शो यू इन टर्मिनल हाउ यू कैन सेट द परमिशन ऑफ फाइल फोल्डर्स विद इन सेकेंड्स ओनली। ओके, तो आपको क्या करना है, टर्मिनल पे सबसे पहले आपको टर्मिनल का लिंक सर्च करना आपके सी पैनल में लॉगिन करने के बाद। ओके, तो सी पैनल में टर्मिनल आपको वहाँ मिलेगा एडवांस सेटिंग में। ओके, दिस इज द टर्मिनल लिंक। ओके, तो इन सेम वे मे बी योर सी पैनल्स द view is different. Okay, but mostly cPanels provide the terminal link. Okay, तो सबसे पहले आपको टर्मिनल सर्च करना है आपके cPanel में और उस पर क्लिक करना है। when you will click on terminal link it will open the terminal. Okay, first time when you will to click on the terminal, okay, then he will ask your confirmation to process the टर्मिनल। ओके, तो उस केस में आपको उसको प्रोसेस कर देना है, बिकॉज टर्मिनल बाय टर्मिनल इफ़ यू आर गोइंग टू डू एनी थिंग्स ऑन योर वेबसाइट देन यू हैव नीड टू डू वेरी केयरफुली। ओके, यदि आपने कुछ भी गलती की आपका साइट बंद हो सकता है, आपका सारा फोल्डर डिलीट हो सकता है, आपका पूरा फाइल इधर से उधर मूव हो सकता है। ओके, सो यू हैव नीड टू डू ऑल थिंग्स वेरी केयरफुली। ओके, यदि आपको टर्मिनल का आइडिया नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी knowledge of terminal, okay, in that case you need I will suggest you to take the help of your hosting support, or you can take the help from your server IT guys. Okay, so टर्मिनल अपना ओपन हो गया है, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ द टर्मिनल रूट पाथ। ओके, एंड यहाँ पे सारा फोल्डर परमिशन टाइप देखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा LS। ओके, तो ये क्या करेगा, आपको जितने भी फाइल फोल्डर आपके रूट में है उसका परमिशन शो कर देगा। सो दीज आर द फोल्डर्स एंड माय रूट। ओके, तो जैसे कि हम देखा, मैंने वर्डप्रेस जो है एक वर्डप्रेस सब फोल्डर बनाया हुआ है सर्वर पे, उसमें इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, आई हैव इंस्टॉल द वर्डप्रेस इनटू ए सब फोल्डर एंड रूट। ओके, सो सबसे पहले मेरे को इस लोकेशन पे जाना है बाय टर्मिनल। ओके, तो आपको क्या करना है, CD बेसिकली CD टू कमांड चेंज। ओके, चेंज डायरेक्टरी, तो ये जो कमांड जो होती है CD वो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए होते हैं। तो मेरा फोल्डर है, माय फोल्डर इज लोकेटेड public underscore HTML, okay, and WordPress, because I have installed the WordPress and subfolder of root directory. Okay, तो क्या करना है, CD public underscore HTML, okay, and hyphen WordPress। आपकी डायरेक्टरी चेंज हो गई, अभी यू आर नाउ इन वर्डप्रेस डायरेक्टरी। ओके, सो यहाँ पे सेम आपको चेक करना है कि उसी डायरेक्टरी में है या नहीं। सो यू नीड टू मेक श्योर यू आर ऑन राइट डायरेक्टरी और नॉट। जस्ट टाइप अगेन LS एंड एंटर। ओके, you can see here the WordPress files, it means we are on right place। okay, यहाँ पे सभी WordPress की फाइल फोल्डर हैं, तो हमारा जो रूट है वो सही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू गिव द
परमिशन टू योर फाइल एंड फोल्डर। ओके, तो फाइल एंड फोल्डर की परमिशन जो है, फाइल्स की परमिशन ऑलवेज 644। ओके, एंड फोल्डर की परमिशन जो है वो होनी चाहिए 755। ओके, सो सिक्योरिटी रीजन से यही दो परमिशन है जो काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, if you use the 777 permission, in that case hacker or spammer can easily hack your code or your website। ओके, तो आपको क्या करना है, फाइल का परमिशन ऑलवेज 644 एंड फोल्डर का परमिशन ऑलवेज 755। ओके, सो सेफ्टी पर्पज से आपको ये यूज़ करना है। ओके, पहले जो cPanel होते थे उसमें फोल्डर से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड इशू नहीं आते थे। ओके, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन the server has upgraded their functionality। okay, so if they found the 777 permission or file and folder, in that case they will not provide the access of this file। okay, in that case you will get the error, server internal error। okay, मोस्टली जो सर्वर इंटरनल एरर जो आती है फाइल फोल्डर सर्वर पर अपलोड करने के बाद, वो परमिशन की वजह से आती है। 777 परमिशन के केस में कोई भी सर्वर आपको कोड को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। तो इसलिए आपको जो परमिशन सेट करनी है वो फाइल पे 644 एंड फोल्डर्स पर 755। ओके, समटाइम लाइक वर्डप्रेस WP अपलोड्स। ओके, तो WP uploads you can set the 777 permission in case if you are not able to upload the files from admin। okay, if you are getting the any error, file permission error from admin, then you can set the WP upload, only WP only uploads folder to 777। okay, not WP content, only uploads folder to 777। okay, or I will suggest you to keep the 666 परमिशन। ओके, तो 666 परमिशन के केस में भी आपका फाइल फोल्डर अपलोड हो जाता है डायरेक्ट अपलोड वाले फोल्डर में। ओके, यदि नहीं हो रहा है तो यू कैन सेट द परमिशन टू 777। ओके, आपको केवल अपलोड्स वाले फोल्डर पे देना, पूरा फाइल फोल्डर पे नहीं देना है। ओके, सो लेट मी show you how you can set the file and folder permission recursively। okay, within second only। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइप करना है फाइंड। ओके, फाइंड क्या करेगा, फाइल और फोल्डर्स को हम सर्च करते हैं, उसके लिए होता है फाइंड। हमने सर्च किया, उसके बाद सॉरी वन बाई वन। सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूँगा, आपको रूट आपका जो सर्वर है उसका एब्सोल्यूट पाथ फाइंड करना है। ओके, बिफोर बिकॉज यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ देयर विल वेरी लेस चांसेस ऑफ एनी मिस्टेक। ओके, तो आपको रूट का जो एब्सोल्यूट पाथ है उसी को यूज करते हुए आप अगर परमिशन सेट करोगे तो कहीं भी दूसरे आपके साइट पे, यदि इफ़ यू हैव पोस्टेड सम अदर वेबसाइट ऑन योर वेबसाइट योर सर्वर एज वेल, ओके, देन in that case it will not affect the other website डेटा। ओके, तो एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ करना सबसे सिक्योर रहेगा। यदि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब भी ये एब्सोल्यूट पाथ वाला लॉजिक सबसे पहले अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है एब्सोल्यूट पाथ करने के लिए PWD। ओके, एंड एंटर। ओके, you can see the absolute path of our directory here। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, कॉपी, राइट क्लिक एंड कॉपी किया मैंने। अब इसके बाद हम सर्च करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। कहाँ पे करेंगे, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे। ओके, फाइंड स्पेस के बाद हमने एब्सोल्यूट पाथ डाला है। ओके, yeah, find and then space and then absolute path। okay, and after that give the
वन मोर स्पेस एंड यहाँ पर करना आपको हाइपन टाइप। ओके, हाइपन टाइप आपको फाइंड करना है फाइल और डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी फाइंड करना है तो आपको करना पड़ेगा डी। ओके, टाइप डी, डी मीन्स डायरेक्टरी। ओके, एंड आफ्टर दैट you have need to click on तो आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले फाइंड एंड एब्सोल्यूट पाथ एंड आफ्टर दैट स्लैश टाइप। ओके, एंड डायरेक्टरी, डी मीन्स डायरेक्टरी। ओके, एंड एग्जीक्यूट करना है इसको हाइपन ई एक्स ई सी, एग्जीक्यूट किया हमने। अब सी एच मोड। ओके, सी एच मोड सबसे पहले हम डायरेक्टरी परमिशन दे रहे हैं तो परमिशन दे रहे हैं हम 755। ओके, रिकर्सिव परमिशन के लिए हमको क्या करना है ब्रैकेट। ओके, एंड ब्रैकेट के बाद आपको स्पेस, आपको सभी के बीच में स्पेस रखना है। ओके, फाइंड स्पेस एब्सोल्यूट पाथ, फिर उसके बाद आपने स्पेस अगेन टाइप, देन स्पेस डी, देन अगेन स्पेस एंड टाइप द हाइपन ई एस ई सी। ओके, ई एक्स ई सी। ओके, उसके बाद फिर स्पेस देना आपको, अगेन स्पेस एंड आफ्टर दैट फिर अगेन स्पेस एंड यू हैव नीड टू डिफाइन द परमिशन ऑफ हेयर 755, जैसा कि अभी जो है फोल्डर को देने जा रहे हैं। एंड इसके बाद फिर आपको ब्रैकेट। ओके, उसके बाद फिर अगेन स्पेस देना है और उसके बाद बैक स्लैश एंड ब्रेक। ओके, तो कर्ली ब्रेक लगा दिया आपने, तो ये आपका पूरा पाथ होगा। ओके, तो फाइंड स्पेस एब्सोल्यूट पाथ आपने PWD ये वाला कॉपी किया था। ठीक है, तो उसके बाद आपने स्पेस दिया, स्पेस के बाद टाइप हाइपन टाइप डी ई एक्स ई सी सी एच मोड। सी एच मोड में क्या किया आपने परमिशन सेट किए फोल्डर्स की 755। ओके, और एंड फिर दोबारा से ब्रैकेट स्पेस बैक स्लैश, आई थिंक वी हैव नॉट गिवन स्पेस हियर। ओके, तो बैक स्लैश और कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो आपने ये यूज किया है, अब आपको क्या करना है एंटर दबाना। ओके, तो आप लेट्स सी द मैजिक ऑफ टर्मिनल। ओके, you can see it's, let me refresh the page here. Wow, you can see all folders permission I have changed to फोल्डर, सारा जितना भी है सभी का परमिशन चेंज हो गया है। इसके अंदर सब फोल्डर नहीं है, जैसा कि इंक्लूड के अंदर इसमें भी 755 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी 644 ही है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपका परमिशन सेट हो गया है। तो यू कैन सी हाउ within a millisecond all subfolder or subfolders or their subfolders permission has changed to 755. Okay, so this is the magic of the terminal. Okay, टर्मिनल से बहुत सी सारी चीज़ें बहुत कम समय में की जा सकती हैं, बट इफ आपको टर्मिनल चलाने का नॉलेज होना चाहिए, because only your one mistake can break your all server. ओके, तो आपको टर्मिनल का होल आइडिया होना चाहिए, बिना उसके करोगे तो बहुत रिस्क रहेगा। सो फोल्डर्स का परमिशन सेट हो गया, लेट मी सेट द परमिशन ऑफ फाइल्स। ओके, तो फाइल्स के परमिशन के लिए क्या करना है, सेम आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अप
वाला एरो यूज करना है। ओके, अप एरो क्लिक करना है। यू कैन सी जो भी मैंने अभी टाइप किया था वो मेरा दोबारा से यहाँ पर आ गया है। ओके, तो यदि आप अप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दोबारा से सब कुछ लिखना पड़ेगा और आपको सब कुछ सेम रहेगा। बस क्या करना है, डी की जगह पे आपको कर देना है ऐप। ओके, so basically we are now going to set the permission for files. Okay, d means directory. Okay, so in last command we have set the permission for directory, and in this time we are going to set the permission for our directory files, sorry, files only. Okay, so 644. okay, मैंने अभी जो परमिशन सेट किया है वो 644 किया है। ओके, तो इसमें let me enter again and see the magic of the terminal. Yeah, this is also done, and within millisecond only. Here you can see the all files permission is 664. Okay, so let me refresh. Yeah, you can see the file permission has been changed to 644. Okay, within within milliseconds सारे फोल्डर्स का, फाइल्स और फोल्डर्स का परमिशन चेंज हो गया है। ओके, ठीक है, यू कैन सी 644। तो यू सी द मैजिक ऑफ द टर्मिनल। ओके, टर्मिनल से आप बहुत ही ज़्यादा इजीली कोई भी काम कर पाते हैं, लेकिन आपको टर्मिनल का नॉलेज होना ज़रूरी है। टर्मिनल से बिना नॉलेज के आप कुछ भी करने जाओगे तो कहीं एक छोटी सी भी मिस्टेक आपके साइट को डाउन कर देगी और ऊपर से आपको कोई बैकअप भी नहीं रहेगा। ओके, तो गाइज आई एक्सप्लेन द स्मार्ट वे टू सेट द फाइल एंड फोल्डर परमिशन फ्रॉम योर cPanel। ओके, तो ये जो जितना भी कमांड है ये मैं मैसेज वीडियो के मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप यहाँ से कॉपी करके भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट आपको इसमें क्या करना है, आपको एब्सोल्यूट पाथ अपडेट जरूर करना है। ओके, यदि आप रूट में देना चाहते हैं तो आपको पब्लिक HTML तक का ही पाथ लेना है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, एब्सोल्यूट पाथ के लिए टाइप करना है pwd, और pwd टाइप करने के बाद आपको पाथ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो all is, I hope all is clear for you. Okay, and you can do it from your end as well. Okay, if you have any query, any question, then you can leave your message in video comment box. Okay, and I will try to give the response of your message as soon as possible. तो दोस्तों आज के लिए ही इतना काफ़ी है। ओके, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अपना टर्मिनल से। यदि आपको इफ़ यू हैव नो एनी टेक्निकल नॉलेज, then you can do it also by using the same steps explained in this video. Okay, so guys, I hope you like my video. Okay, and it really helpful for all the guys who are getting the issue during move the website on server. Okay, जनरली इस इशू सर्वर इंटरनल रिलेटेड एरर सभी फेस करते हैं सर्वर पर अपलोड करते टाइम पे, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं फाइल फोल्डर परमिशन के लिए। ओके, तो गाइस टेक केयर, बाय, आई विल बैक अगेन विद न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो बाय बाय, take care.